بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. يا عليم علمني. يا عليم علمني. يا عليم علمني. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل اور کرم ہے، احسان ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور آج ہمارا چوتھا سبق ہے علم الصرف کا۔ تو پہلے جو ہم نے اسباق پڑھے ہیں ان کو دہرا لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے سبق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم فعل ماضی پڑھنے جا رہے ہیں، فعل ماضی۔ شروع میں آپ کو بتایا تھا زمانے تین ہے: ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، حال موجودہ زمانے کو، اور مستقبل آنے والے زمانے کو، فیوچر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ابھی پاسٹ ٹینس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ماضی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ عربی زبان میں ہم نے ماضی کے حوالے سے، پاسٹ کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو کس انداز سے کریں گے، وہ طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آدمیوں کی تین قسمیں ہیں۔ آدمیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک متکلم، بولنے والا، بات کرنے والا، جس کو انگلش میں فرسٹ پرسن کہتے ہیں غالباً۔ اور دوسرا حاضر، جو سامنے موجود ہو، جس سے بات کی جا رہی ہے، جس کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس کا دوسرا نام جو ہے مخاطب بھی ہے۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مخاطب، مخاطب نہیں، مخاطب، تو کے اوپر زبر ہے، مخاطب، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مخاطب یا حاضر کو سیکنڈ پرسن بولتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ غائب ہے، جو موجود نہ ہو، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ اس طرح ہے، وہ آج کلاس میں نہیں ہے، اس کو غائب کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غائب، تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ تو گویا کہ آدمیوں کی کتنے قسمیں ہوں گے؟ تین قسمیں: متکلم، حاضر اور غائب۔ متکلم اور حاضر اور غائب۔ پھر میں نے آگے بات کی کہ ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں۔ متکلم جو ہے، بولنے والا ہوتا ہے، وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو حاضر ہے، جس سے ہم بات کر رہے ہیں، وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح غائب جو ہے، جس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہوتی ہے، وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو دو قسمیں ہو گئی، ہر ایک کی دو دو قسمیں۔ اب جب دو دو قسمیں ہو گئی تو ٹوٹل کتنے ہو گئی؟ 6 ہو گئے۔ متکلم کے دو، 6، 2 ہو گئے، حاضر کے 2 اور غائب کے 2، تو کل کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے ان میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں بنتی ہے۔ اب متکلم جو بولنے والا ہے، مذکر ہے یا مؤنث، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، بولنے والا ایک بھی ہو سکتا ہے، بولنے والے 2 بھی ہو سکتے ہیں، جس کو تثنیہ کہتے ہیں، بولنے والے ایک سے زیادہ، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جس کو جمع کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حاضر جو ہے، چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، جو سامنے موجود ہوتا ہے، سننے والا، جس سے ہم بات کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، جس کو تثنیہ کہیں گے، وہ جمع بھی ہو سکتے ہیں، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح آپ لوگ جو ہے جمع ہے، حاضر ہے، جمع ہے۔ اسی طرح غائب جو ہے، وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، اور جمع بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ الفاظ میں نے آپ کو سکھائے تھے، جیسے اکلتو، پہلا لفظ میں نے کیا سکھایا تھا؟ اکلتو، اکلتو، یہ آخر میں جو ہے
تا पेशतू आ जाए तो ये मुतकल्लिम की अलामत है। ये किसकी अलामत है? मुतकल्लिम की अलामत है। कल ही मैंने आपको बता दिया मुतकल्लिम में मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए क्या होता है? एक लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता है। फिर मैंने आपको सिखाया था कि अगर हम ज़बर लगा दें, ताकि ऊपर क्या कर लें? ज़बर लगा लें, तो ये मुज़क्कर हाजिर बन जाएगा। अकलता, क्या तब्दीली लेके? अकलता, आप एक मर्द ने खाया। इसी तरह अगर ताकि ऊपर जेर लगा दे, ताकि नीचे क्या लगा दे? जेर लगा दे। अकलती, आप एक औरत ने खाया, आप एक औरत ने खाया। फिर आगे अगर इसी तरह यहां पे हम क्या कर दें? लाम के ऊपर जबर लगा दें और आखिर में ता के ऊपर वो लगा दें, सुकून लगा दें, तो इसका मतलब होता है उस एक औरत ने खाया, उस एक औरत ने खाया, गायब का हो जाएगा। फिर आगे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी अलामत ना हो तो ये गायब का होगा मुजक्कर के लिए। अकाला, उस एक मर्द ने खाया, अकाला, उस एक मर्द ने खाया। तो वाहिद के 5 सीगे जो है हमने पढ़े थे, अकाला, अकालत, अकलता, अकलती, अकलतू। ये उम्मीद करता हूं कि आप में से हर एक को समझ भी आ गए होंगे, याद भी कर लिए होंगे, समझ भी आ गए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, ये तो वाहिद के थे। आगे फिर जमा के बारे में भी हमने कल पढ़े थे, जमा के बारे में भी हमने पढ़ा था। जमा मैंने क्या बताया था कि आखिर में नून अलिफ ना हम लगा देंगे। आखिर में हम क्या कर दें? नून अलिफ ना लगा दें। हम आखिर में नून अलिफ ना लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? अकल ना, अकल ना, हम सब ने खाया। तो ये जमा की अलामत है, जमा मुतकल्लिम, एक वाहिद मुतकल्लिम और एक जमा मुतकल्लिम। अकल ना, हम सब ने खाया। इंग्लिश में इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? वी इस्तेमाल करते हैं। वाहिद मुतकल्लिम के लिए आई इस्तेमाल करते हैं और जमा के लिए वी इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह अगर इस लफ्ज के आखिर में हम तुम लगा दें, तुम उर्दू में हम बोलते हैं ना कि तुम सब ने किया ये काम, अकल तुम सब ने खाया, अकल तुम सब मर्दों ने खाया, तुम सब मर्दों ने खाया। इसी तरह अगर इसके आखिर में हम तुन न लगा दें, अकल के आखिर में क्या लगा दें? तुन न लगा दें, तो इसका मतलब क्या होता है कि तुम सब औरतों ने खाया। अकल तुन्ना, अकल तुन्ना, तुम सब औरतों ने खाया। तो ये भी हमने कल पढ़ लिया था, ये भी हमने क्या कर लिया था? कल पढ़ लिया था। यहां तक बात समझ आ गई थी? जरा मुझे कंफर्म कर दें, जरा जवाब दें सब। यहां तक बात समझ आ गई? बिलखुसूस वो तलबा और तालिबात जो मैं पहली मरतबा सर्फ और नहव सीख रहे हैं। जी हाँ, कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई यहां तक? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है। देखिए, फेल माजी में जो हम अलामात पढ़ते हैं वो बिल आखिर में हमने देखना होता है, आखिर 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 को हम देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे कलमे के आखिर में अगर नून जबर ना लगा दें, कलमे के आखिर में हम क्या लगा दें? नून मफ्तूह, नून जबरना को नून मफ्तूह कहते हैं। ठीक है, क्या लगा दें? नून मफ्तूह। अकल न, एक यहां पे देखिए मुतकल्लिम का जो है अकल ना है, ना, नून अलिफ ना है, और ये अकल न है, अकल न, उन सब औरतों ने खाया। अकल न, उन सब औरतों ने खाया। अकल न, उन सब औरतों ने खाया। ठीक है, इसी तरह अकल न,
उन सब औरतों ने कहा। ये गायब जमा गायब का हो जाएगा और मुअन्नस जमा मुअन्नस गायब कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? जमा मुअन्नस गायब। इसको जरा आगे जो मिसालें हमने पढ़ी थी कल, उनमें जरा इसको अप्लाई कर लेते हैं। अकलना, उन सब औरतों ने खाया। शरीबना, उन सब औरतों ने पिया। क़रअना, उन सब औरतों ने पढ़ा या तिलावत की। समिअना, उन सब औरतों ने सुना। हफिज़ना, उन सब औरतों ने याद किया। हफिज़ना, उन सब औरतों ने याद किया। फ़अलना, उन सब औरतों ने किया। उन सब औरतों ने किया। ये बात समझ आ गई जी? तो ये जमा मुअन्नस गायब की अलामत क्या हुई कि आखिर में हम क्या लगा देंगे? नून जबर न, नून जबर न। अब जमा मुज़क्कर गायब की तरफ आते हैं। अकलू, क्या है? अकलू, यानी आखिर में वाव साकिन लगा देंगे। अकलू, वाव साकिन के साथ हमेशा यहाँ पे जमा में अलिफ भी आता है, ठीक है? अकलू, उन सब मर्दों ने खाया। उन सब मर्दों ने खाया। अब यहाँ पे देखें, बाकी सब जगह पे लाम के ऊपर सुकून है। बाकी सब जगहों में लाम के ऊपर क्या है? सुकून है। लेकिन यहाँ पे जमा मुज़क्कर गायब में जब आगे लाम के ऊपर पेश आ गया, ठीक है? अकलू, अकलू। इसी तरह बाकी सीगे भी हम जरा एक मर्तबा देख लेते हैं। बाकी सीगे जो है, बाकी जो अल्फाज है, अकलू, उन सब मर्दों ने खाया। शरीबू, उन सब मर्दों ने पिया। क़रअू, उन सब मर्दों ने पढ़ा। समीऊ, उन सब मर्दों ने सुना। हफिजू, उन सब मर्दों ने याद किया। और फ़अलू, उन सब मर्दों ने किया। उन सब मर्दों ने किया। जी भाई, समझ आ गई? तो जमा के 5 सीगे भी हमने सीख लिए। जमा के 5 सीगे जो है वो भी हमने सीख लिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा दोबारा दोहरा रहा हूं, आप भी मेरे साथ दोहराएं ताकि याद हो जाए हमें। अगर कलमे के आखिर में ता मजमूम आ जाए तो ये वाहिद मुतकल्लिम की अलामत है। अकल तो मैंने खाया। कलमे के आखिर में ता मफ्तूह आ जाए, जबर वाला ता आ जाए, तो ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर की अलामत है। जैसे अकल था, तू एक मर्द ने खाया, आप एक मर्द ने खाया। अगर कलमे के आखिर में ता मकसूर आ जाए, जेर वाली ता आ जाए, तो ये वाहिद मुअन्नस हाजिर की अलामत है। इसका मतलब होता है अकल थी, आप एक औरत ने खाया, ठीक है? और अगर कलमे के आखिर में ता साकिन आ जाए तो ये वाहिद मुअन्नस गाइब की अलामत है। जैसे अकालत, उस एक औरत ने खाया। और अगर आखिर में कोई अलामत ना हो, जैसे अकला, तो ये वाहिद मुज़क्कर गायब की अलामत है। अलामत का ना होना ये वाहिद मुज़क्कर गायब की अलामत है। जैसे अकला, उस एक मर्द ने खाया। ये तो वाहिद के 5 सीगे थे। जमा के 5 सीगे। अगर कलमे के आखिर में नून अलिफ ना बढ़ा दें हम, अकल ना, तो ये जमा मुतकल्लिम की अलामत है। जमा मुतकल्लिम की अलामत है। अकल ना, हम सब मर्दों ने या हम सब औरतों ने खाया। इसी तरह कलमे के आखिर में तुम अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये जमा मुज़क्कर हाजिर की अलामत है और इसका मतलब होता है तुम सब मर्दों ने खाया। और अगर कलमे के आखिर में तुन्ना बढ़ा देते हैं, जैसे अकल तुन्ना, तो ये जमा मुअन्नस हाजिर की अलामत है, जिसका मतलब होता है तुम सब औरतों ने खाया। इसी तरह अगर कलमे के आखिर में नून जबर न ये बढ़ा दें तो ये जमा मुअन्नस गाइब की अलामत है। जैसे अकल न, अकल न, उन सब औरतों ने खाया। अकल न, उन सब औरतों ने खाया। अगर कलमे के आखिर में वाव साकिन बढ़ा देते हैं तो ये जमा मुज़क्कर गाइब की अलामत होती है और इसका मतलब होता है उन सब मर्दों ने खाया।
उन सब मर्दों ने खाया। जी यहां तक बात समझ आ गई, याद हो गई बात। आगे तस्निया की तरफ जाएं, हम तस्निया की तरफ चले जाएं। तस्निया के लिए 3 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तस्निया की तरफ हम जाने लगे हैं, ये बहुत ही आसान है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना अपनी। अकला, आखिर में हम क्या बढ़ा दें? अलिफ बढ़ा दें। इसके आखिर में हम क्या कर दें? अलिफ बढ़ा दें, अलिफ बढ़ा दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तस्निया मुजक्कर गायब हो जाएगा। अकला, अकला, उन दो मर्दों ने खाया। अकला, उन दो मर्दों ने खाया। शरीबा, उन दो मर्दों ने पिया। समिया, उन दो मर्दों ने सुना। क़रअ, उन दो औरतों मर्दों ने पढ़ा। हफिज़ा, उन दो मर्दों ने याद किया। तो ये तस्निया मुजक्कर गायब की अलामत क्या हो गई कि वाहिद के आखिर में अलिफ बढ़ा दे, सिर्फ अलिफ बढ़ा देंगे तो ये वाहिद मुजक्कर गायब की अलामत है, सिर्फ अलिफ बढ़ा देंगे। ठीक है, और अगर ता बढ़ा दें, कलमे के आखिर में क्या बढ़ा दें? ता बढ़ा दे, जैसे अकलता, अकलता, ता बढ़ा देती ही तो ये जो है तस्निया मुअन्नस गायब की अलामत है, तस्निया मुअन्नस गायब की अलामत है। अकलता, उन दो औरतों ने खाया। शरीबता, उन दो औरतों ने पिया। क़रअता, उन दो औरतों ने पढ़ा। हफिज़ता, उन दो औरतों ने याद किया। समिअता, उन दो औरतों ने सुना। फ़अलता, उन दो औरतों ने किया। तो अगर कलमे के आखिर में सिर्फ सिर्फ अलिफ बढ़ा देते हैं तो ये तस्निया मुज़क्कर गायब की अलामत है, और अगर ता बढ़ा देते हैं तो ये तस्निया मुअन्नस गायब की अलामत है। ठीक है, ये तस्निया की भी समझ आ गई। अब हाजिर की तरफ आ जाते हैं, हाजिर की तरफ। कलमे के आखिर में, कलमे के आखिर में तुमा बढ़ा दें। तुमा, क्या बढ़ा दें? तुमा। अकल तुमा, तुम दो मर्दों ने खाया। अकल तुमा, देखिए तस्निया मुज़क्कर गायब में सिर्फ अलिफ बढ़ाया, उन दो मर्दों ने खाया। ता बढ़ा दिया, तस्निया मुअन्नस गायब, उन दो औरतों ने खाया। तुमा बढ़ा दिया, अकल तुमा, तो ये तस्निया मुज़क्कर हाजिर की अलामत, तुम दो मर्दों ने खाया, तुम दो मर्दों ने खाया। शरीब तुमा, तुम दो औरतों ने पिया। क़रा तुमा, तुम दो औरतों ने पढ़ा। हफिज तुमा, तुम दो मर्दों ने याद किया। समिअ तुमा, तुम दो मर्दों ने सुना। फ़अल तुमा, तुम दो मर्दों ने किया। ये थोड़ा सा गड़मड़ हो गया यहाँ पे ना तर्जुमा करते हुए, तो ये मर्दों का वो आपने करना है, तुम दो मर्दों ने किया, खाया पिया सारा। ठीक है, तो ये तस्निया मुज़क्कर हाजिर की अलामत। आगे यही अलामत जो है तस्निया मुअन्नस हाजिर की भी है, ये गड़बड़ भी इसी वजह से हो रहा था। ठीक है, ये तुमा जब लगा देंगे तो ये तस्निया मुअन्नस हाजिर की भी अलामत है। अकल तुमा, तुम दो औरतों ने खाया, तुम दो मर्दों ने पिया। खाया, ये दोनों के लिए क्या इस्तेमाल होता है? यही एक लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो खुलासा क्या निकला कि कलिमे के आखिर में सिर्फ अलिफ बढ़ा दी तो ये तस्निया मुज़क्कर गायब की अलामत है। अकला, उन दो मर्दों ने खाया। ता बढ़ा दी, अकलता, तो ये तस्निया मुअन्नस गायब की अलामत है, उन दो औरतों ने खाया। तुमा बढ़ा दी, अकल तुमा, तो ये तस्निया मुज़क्कर हाजिर की अलामत है और मुअन्नस हाजिर की भी अलामत है, तुम दो मर्दों ने या तुम दो औरतों ने खाया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पहली गर्दान हमारी मुकम्मल हो जाती है। यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है? पहली गर्दान जो है वो मुकम्मल हो जाती है।
اچھا آپ نے یہاں پہ دیکھا متکلم میں تثنیہ کی طرف ہم نہیں آئے. سوال میں ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ متکلم میں تثنیہ کی طرف ہم نہیں آئے. تو متکلم میں تثنیہ کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہی نہیں ہے. جمع کا جو صیغہ ہے وہ تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اکلنا ہم دو مردوں نے کھایا، اکلنا ہم دو عورتوں نے کھایا. تو گویا کہ جمع جو ہے یہ اکلنا، یہ جمع جو ہے یہ چار صیغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث متکلم کے لیے بھی، اسی طرح جمع مذکر متکلم اور جمع مؤنث متکلم کے لیے بھی. اور یہ اکل تو یہ دو کی جگہ استعمال ہوتا ہے، مذکر متکلم اور مؤنث متکلم کی طرح. تو سمجھ آ گئی بھائی؟ جی ذرا مجھے کنفرم کر دیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی بالکل. چلیے الحمدللہ. اچھا دیکھیں ہم نے ابھی جو ترتیب آپ کو سکھانے کی ترتیب آپ کو بتائی ہے وہ ہم متکلم سے ہم نے شروع کیا تھا. ہم نے کیا کیا تھا؟ متکلم سے. دوبارہ اس کی طرف آ جائیں. میں نے پہلے بتایا تھا اکلتو، پھر میں نے حاضر کی طرف آیا اکلتا، اکلتی. ٹھیک ہے. پھر یہ غائب کی طرف آئے اکلت اور اکلا. پھر جمع کی طرف ہم چلے گئے تھے اکلنا. پھر حاضر جمع کی طرف آ گئے اکلتم، اکلتن. پھر غائب کی طرف آ گئے تھے اکلنا، اکلو، اکلو. ٹھیک ہے. پھر تثنیہ کی طرف چلے گئے اکلا، اکلتا، اکلتما، اکلتما. ہم نے یہ ترتیب رکھی تھی، یہ آپ کو سکھانے کے لیے یہ ترتیب تھی. ٹھیک ہے. ویسے نارملی جو کتابوں میں ترتیب لکھی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے غائب پڑھتے ہیں. کتابوں میں جو ترتیب ہے کیا کرتے ہیں؟ پہلے غائب پڑھتے ہیں مذکر، پھر اس کے بعد غائب مؤنث پڑھتے ہیں، پھر اسی طرح حاضر میں سے مذکر والے تینوں پڑھتے ہیں، پھر مؤنث والے تینوں پڑھتے ہیں، پھر متکلم کے سب سے آخر میں پڑھتے ہیں. میں پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ میری طرف یہ توجہ رکھیے. اکل، اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا، اکلنا، اکلتا، اکلتما، اکلتم، اکلتی، اکلتما، اکلتن، اکلتو، اکلنا، اکلتو، اکلنا. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم نے آئندہ پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ یہ آپ نے یاد کر لینا ہے. اس کو صحیح طریقے سے کیا کرنا ہے؟ یاد کر لینا ہے. اور یہ جو آپ کے سامنے یہ ترتیب لکھی ہے لکھنے کی، یہ لکھنے کی جو ترتیب میں نے یہاں پہ لکھی ہے اسی طرح آپ نے چارٹ بنانا ہے. بس آپ نے یہ کر دینا ہے کہ یہاں پہ تھوڑی جگہ ترجمے کے لیے بھی چھوڑ دینی ہے آپ نے. اسی طرح دیکھیں یہ میں نے جگہ بڑھا دی ہے یہاں پہ تھوڑا سا. اب مثلا یہ میں نے تھوڑی جگہ ترجمے کے لیے بھی چھوڑ دی ہے. اب مثلا اکلا، اس ایک مرد نے کھایا، اس ایک مرد نے کھایا. اسی طرح اس ایک یہ پھر آگے اکلا، ان دو مردوں نے کھایا، اکلو، ان سب مردوں نے کھایا. یا آپ اسی طرح آپ اپنے پاس چارٹ بنا لیں گے. یہ جو مختلف الفاظ آپ کو بتائے ہیں آپ نے ان سب کو لکھنا بھی ہے اور ترجمہ بھی ساتھ میں لکھنا ہے. مثلا اکلا کی جگہ شریبا، شریبا آپ نے لکھ لیا، پھر آگے نیچے ترجمہ آپ نے اس ایک مرد نے پیا، اکلا ان دو مردوں نے پیا، اکلو ان سب مردوں نے پیا، شریبو. تو اس طرح آپ نے وہ مختلف الفاظ جو آپ کو میں نے سکھائے ہیں ان کے ذریعے سے آپ نے یہ گردانیں لکھنی ہے. لکھ لیں گے انشاءاللہ. ہوم ورک سمجھ میں آ گیا؟ جی ذرا کنفرم کر دیں سمجھ آ گیا کہ نہیں.
जी ठीक। ये कल 6 अल्फाज आपको नए भी सिखाए थे। खराजा, दखला, जलसा, कतबा, सकता, हरबा। ठीक है। अब मसलन ये लफ्ज खराजा से मैं पूरी गर्दान करके आपको बताता हूँ। खराजा, खराजा, खराजू, खराजत, खराजता, खराजना, खराजता, खराजतुमा, खराजतुम, खराजती, खराजतुमा, खराजतुन्ना, खराजतु, खराजना। ठीक है। दखला की गर्दान में बताता हूँ। दखला, दखला, दखलू, दखलत, दखलता, दखलना, दखलता, दखलतुमा, दखलतुम, दखलती, दखलतुमा, दखलतुन्ना, दखलतू, दखलना। जलसा की आपको बता देता हूँ। जलसा, जलसा, जलसू, जलसत, जलसता, जलसना, जलस्ता, जलस्तुमा, जलस्तुम, जलस्ती, जलस्तुमा, जलस्तुन्ना, जलस्तु, जलसना। ठीक है। ये तो ये आपने लिख भी लेना है और प्रैक्टिस भी कर लेनी है। ये 6 नए अल्फाज भी आप सीख लीजिएगा। ये 6 नए अल्फाज यहाँ पे, जैसे तलबा उसने ढूंढा, तलबा उस एक मर्द ने ढूंढा, तलबा उन 2 मर्दों ने ढूंढा, तलबू उन सब मर्दों ने ढूंढा, तलबत उस एक औरत ने ढूंढा। इसी तरह बाकी अल्फाज आप बनाते जाएंगे। सतरा उसने छुपाया, सतरा उन 2 मर्दों ने छुपाया, सतरू उन कई मर्दों ने या उन सब मर्दों ने छुपाया। सकता खामोश रहने के माना में, वो खामोश रहा। सकता वो 2 खामोश रहे, सकतू वो सब खामोश रहे। कतला उसने कत्ल किया, नशरा उसने फैलाया, नसरा उसने फैलाया, हशरा उसने जमा किया। ये 6 नए अल्फाज जो है ये आपने लिख लेने हैं, इनको याद कर लेना है और पूरी गर्दान इन 12 अल्फाज से करनी है। लिखनी तो 6 अल्फाज से, वो जो आपको मैंने पहले बताए हैं, और इन 12 अल्फाज से आपने जुबानी करनी है। जुबानी आपने पूरी गर्दान आपने पढ़नी है तर्जुमे के साथ। पैटर्न वही है, पैटर्न जो है वही है जो मैंने आपको बता दिया, जिसकी तरफ दोबारा हम जा रहे हैं। पैटर्न यही रहेगा, ये जो आपके सामने है। ठीक है। इस तरह आपने लिखना है। तो ये जो 6 अल्फाज है, जो 6 अल्फाज आपने लिख, इन 6 अल्फाज से मुकम्मल गर्दान आपने लिखनी है। ठीक है। और बाकी जो 12 अल्फाज मैंने आपको बताए, उन अल्फाज से आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जुबानी प्रैक्टिस कर लें। जुबानी आपने क्या करनी है? प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो ये आज का सबक था हमारा इल्म सर्फ का। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। फेल माजी मारूफ की पहली हमारी गर्दान मुकम्मल हो चुकी है। अब इसकी इंशाल्लाह मजीद प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह इसकी क्या करेंगे? मजीद प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, ताकि ये हमें अजबर याद हो जाए। एक गर्दान हमें सही तरीके से याद हो जाए तो फिर आगे बाकी गर्दानें भी इंशाल्लाह हमें याद हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए।